Hello guys, if you're here, so that means there are some messages for you. So right now you're on Blessed Tarot. So let's get started with the video. So what are the messages that you need to hear right now? This video is about that कि आपको अभी क्या जानना है, God की तरफ से आपके लिए क्या messages हैं. So just take that messages that feel resonated to you, but now leave the rest. So let's get started कि क्या messages आ रहे हैं आपके लिए. Okay, let's get started. Please God बताइए क्या messages जो है मेरे viewers को चाहिए सुनना है अभी. Please tell me. What are the messages they need to hear right now? The Queen of Swords is here. At the back, we have the Ace of Swords. There's only one card that came out in the tarot. So, what is the messages that they need to hear right now? Please tell me. Second card is Celebration. At the back, we have Export. Next is the Spiritual Guidance, Protection from Harm. Money or property through an inheritance, winning and windfall. And at the back, we have someone is trying to come between you and a friend or something that you want. Getting together with the friends. Don't back down from a position. Show strength and fortitude. That is the energy of the Queen of Swords. The most difficult part of the situation is over. Alphabet B could be important for you. The word stock is I am hearing a lot now. Stock. The word over I am listening here. Empathy. Sudden. Rescue. Dismantling. The word is here. Odd. Five of Wands. Mesmerizing I am hearing. A lot of word is coming. Alchemist. At the back we have Nine of Pentacles. Choose yourself. Finances. Another try. At the back we have sensitive, competitive. So, wait a while. I'm again hearing the word cycle. Randomness. Poverty. Charismatic. Insult. Angry. Dramatic. Punctual. Beautiful. In a proper phase, that transformation is beautiful. So ये सारे जो words I speak now वो आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं. That word could be an answer for anyone. That word जो मैंने शब्द बोले वो आपकी किसी चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करके रख सकते हैं. So right now your situation that I could see is कि you are मतलब आपकी लाइफ में ना there is some obstacles that is coming towards you. जिसमें ना आपको एक चीज़ चाहिए. You want your finances to be good. You want you to be respected. You want you to be whatever your goals is. आपका कोई goal है, money हो सकता है, finances हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो that you do wants you, right? तो someone makes you angry or someone is like doesn't make respect you or some sort of like कोई किसी इंसान ने आपको trigger करा. Someone triggered you a lot, ठीक है? And you feel like that how you go back to your sheet. What I'm saying? Shield, right? आप अपने फिर से cave में वापस चले गए. You go back to your comfort place, ठीक है? कि now I don't want, ठीक है? Now you heal from that, ठीक है? Because you celebration is here. And yeah, you want it. Ace of Swords is the back, you export is the at the back. तो आपने उस चीज़ को निकाल दिया अपने जहन से, ठीक है? अपने अंदर से आपने उस चीज़ को whatever the obstacle जो आपकी लाइफ में आ रहा था, it's like कि हाँ ओके लेट मी ट्राई इट अनदर वे कि ताकि आपको और चीज़ समझ में आए कि इट्स लाइक आपको चूज़ करना था खुद को और आपके फाइनेंसेस आपके करियर्स को. लेकिन
योर कंपेरेटिव नेचर कि कंपेयर करना अपने आप को, और आपका जो सेंसिटिव नेचर है कि किसी ने कुछ बोल दिया आपको, वो चीज़ जब भी चुप जाती है, आपसे जवाब नहीं आते हैं, या आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाते हो, या आप अपने आप का स्टैंड नहीं ले पाते हो, आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते हो। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स लाइक वो है ही नहीं ऐसे, वो कंपेरेटिव है ही नहीं, वो सेंसिटिव है ही नहीं। या कि सबकॉन्शियस में था द नेचर ऑफ बीइंग सेंसिटिव इन द कंपेरेटिव, कि सेंसिटिव यानी कि आपको कोई बात चुप जाती थी, आपको कोई कुछ बोल के चले जाए, जब आप कुछ बोल के बाद उस चीज़ के बारे में लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग यू आर डूइंग। कंपेरेटिव इज लाइक कि आप अपने आप को कंपेयर करते थे और सबकी लाइफ से अपने आप को कंपेयर करते थे और सबको कंपेयर करते थे, दैट बोथ ऑफ दीस थिंग्स आर नॉट गुड। ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आपने अब इस चीज को हासिल कर लिया, हाँ यू हील योरसेल्फ फ्रॉम दैट। अब आप सेंसिटिव नहीं हो, अब आप कंपेरेटिव नहीं हो, यू आर इन द एनर्जी ऑफ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू यू। बिकॉज आप अगर ये सेंसिटिव और कंपेरेटिव नेचर लेकर घूमते, ना ही आप अपना भला कर पाते, ना ही आप अपने ग्रोथ के साथ चल पाते, ना ही आप अपने कार्य में कुछ कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स इज लाइक कि सब चीजें आपकी लाइफ में स्टार्टर थी, सब चीज आपकी लाइफ में बिखरी हुई थी, बट बाय टेकिंग द स्टेप आप मेरे ख्याल से काफी टाइम तक आप एक आइसोलेशन में गए हो, आप एक लाइक इंट्रो नॉट इंट्रोवर्ट बट आप एक आइसोलेशन में चले गए थे, आप अपनी कंफर्ट प्लेस पे चले गए थे, जहाँ पे यू डोंट क्वेश्चन एनीवन्स इंटेंशंस। एंड राइट नाउ जस्ट 505 इवन 505 कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो डेफिनेटली। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट प्लेस में चले गए थे, देयर यू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपने अपने ऊपर काम करा, आपने अपनी नेचर को देखा, आपने अपने आप को क्वेश्चन करा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत नहीं हूँ, एंड आपने उस चीज़ को वट एवर द थिंग दैट इज बीइंग द डिस्कम्फर्ट इन यू, आपने उस चीज़ को निकाला एंड यू वॉन्ट इट। इवन आप उस चीज़ से आपने विक्ट्री हासिल कर लिया, आपने उस चीज़ से हील होने में विक्ट्री हासिल कर लिया। दैट्स व्हाई द बैक देयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही थी, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, यू एंड दैट, आपने वो चीज़ खत्म कर दी है। नाउ इट्स द टाइम टू शो योर स्ट्रेंथ इन द फॉर्टिट्यूड, यानी कि whatever the situation is, ये दोबारा ट्राई करेगी, another tries here कि within a few days ये चीज़ से आपने हील कर लिया। now it's a test for you, now ये दोबारा चीज़ आपके पास आएगी जिस चीज़ से आपने हील करा है। now this thing is going to come again towards you, and now you have to be very strengthful, very fortitudeful, very confident about yourself that yes you can lead it। ठीक है, आपको नहीं फर्क पड़ता है इस प्रॉब्लम से, आपको सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि खुद को चूज करना, खुद के फाइनेंसेस को चूज करना, खुद की खुशी को चूज करना, ना कि what other person wants। जो भी सिचुएशन है, ये कोई जरूरी नहीं कोई इंसान हो, whatever the fear you have। ठीक है, so there is any other messages that I miss out or something, please tell me, कोई clarification या कोई चीज़ if I miss out। pain is here, unconditional love is here, beautiful, charming, handsome। या आप में से बहुत सारे लोगों को सेल्फ इमेज इश्यूज हो सकते हैं कि आप खुद को नहीं एक्सेप्ट करते थे, बट नाउ यू आर डूइंग इट। ब्यूटीफुल फीचर्स इज अगेन हियर कि नाउ यू आर नोइंग हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ चार्मिंग यू आर, हाउ वर्दी यू आर, एंड देयर इज अ मैसेज कमिंग दैट यू डिड इट राइट। ठीक है, आपने जो भी करा है इस चीज़ से के लिए आपने बहुत सही करा है। लाइक कि मेजरली यहाँ पे ना मेरे को जो दिख रहा है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना रखना, कॉन्फिडेंस इशूज होना, सेल्फ इमेज इशूज होना कि यार मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, ये नहीं दिख रहा हूँ, या yes at the back we have to restart। now something is going to be resurfacing again that once making an obstacle into your life। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है दैट यू हील फ्रॉम समथिंग। नाउ कोई पेन था जिससे आपने अपने आप को हील करा है, एंड यू हील योरसेल्फ, बट नाउ इट्स द टाइम टू फॉर अ टेस्ट। ठीक है, अब आपके टेस्ट का टाइम है कि आप क्या करते हो, आपने कितना सीखा चीज़ से, या फिर ये सिर्फ आइसोलेशन में वर्क कर रहा है कि बाहर सोसाइटी में आपका वर्क करेगा या नहीं। अ चेंज फॉर द बेटर, समथिंग हैज बीन चेंज इन योर लाइफ एंड इट इज फॉर द बेटर गुड फॉर यू इवन। ठीक है, नाउ एट द बैक इज समवन इज लिविंग योर लाइफ, समथिंग दैट इज मेकिंग योर लाइफ हार्ड टू लिव इज गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। गाइस, really nice messages that I see कि yes you heal from something, you move towards your growth। आपने अपने अंदर कोई चेंज लाया है, एंड आई एम सीइंग इट मोर टुवर्ड्स द सबकॉन्शियस चेंज। ठीक है, कि आपने अपने अंदर चेंज लाया है, अपनी थिंकिंग में कोई चेंज लाया, अपने सबकॉन्शियस में यू ब्रिंग सम चेंजेस। फॉर सम ऑफ यू इफ देयर इज अ कार्मिक पर्सन जिससे आप हील हुए हो, सो या वो भी यहाँ पे दिख रहा है। नाउ द स्टार फिशेस हियर, नाउ यू आर नोइंग योर वर्थ। कुछ भी हो, आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कि हाँ, बिकॉज आपने को बहुत, आप अपने आप को, कोई और का पता नहीं, लेकिन आप अपने आप को बहुत इंफीरियर मानते थे और सबको बहुत सुपीरियर समझते थे कि और सब बहुत अच्छे हैं, मैं कहाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं। फिर भी नाउ यू हील योर दैट थिंग। ठीक है, दैट ट्रॉमा, दैट व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू आर डीलिंग विद। एट द बैक वी हैव द चैरियट हियर कि यू विन इट, you, and with this they are the 3 of cups and the mother of pentacles। now it's a time of celebration। 3 of cups is also a card of a celebration that now you are being like okay happy go person that yeah okay ठीक है कि मेरे को मेरी वर्ड पता है, now I don't need anyone। and the mother of pentacles is like who have everything। 3 could be important for you because there are 3 twice here। 3 of wands is like कि now you planned everything, आपने अपना mindset change करा, आपने अपना subconscious पे work करा, you have done a lot of work on inside। now it's time for the outside। ठीक है, within I'm feeling कि 3 दिन बाद something could happen with you जहाँ पे कुछ external factors आपको लाइफ में problems create करेंगे, and you need to like कि then it's a time for a test after 3 days। I'm feeling कि 3 दिन बाद आपका कोई टाइम आएगा जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, एंड जब तक आपको फुल अपनी दिमाग से मतलब माइंडसेट को प्रॉपर रखना है, मदर ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी इसमें रहना है आपको। यू हैव टू बी लाइक द स्टार हियर। ठीक है, तो 3 दिन बाद कुछ चीज़ हो सकती है, कोई टेस्ट हो सकता है, कुछ तो हो सकता है विद इन द चैरिट इज एट द बैक, एंड नाउ द चैरिट इज इन हियर एज वेल। एट द बैक वी हैव द 2 of cups even। ओके, नाउ आफ्टर 3 days देयर विल बी अ टाइम, और नॉट इवन 3 days, यानी कि अभी आपका समय आ गया है टू मूव ऑन। मतलब यहाँ पे आ रहा है कि बिकॉज 3 of wands इज द कार्ड ऑफ लाइक कि आपने सोच लिया, आपने प्लान आउट कर लिया है, आपने सब प्लानिंग कर ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर द इंप्लीमेंटेशन। अब आपको उस चीज़ को एक्सिक्यूट करना है, अब आपको उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना है। तो आपने अपना जो वर्क हो सकता था वो कर लिया। इधर ये 2 सिनेरियोस मेरे को दिख रहा है, या तो इंटरनल सेल्फ पे काम करना था वो आपने कर लिया, नाउ इट्स वर्क टाइम टू वर्क ऑन योर एक्सटर्नल सोसाइटी। आप बाहर जब सोसाइटी में निकलोगे तो आप उस चीज़ को पे अटल हो, मतलब स्टैंड कर रहे हो, खड़े हो या नहीं हो, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है दैट वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, ठीक है, आपने प्लानिंग कर रखी है, आपने सब कुछ कर रखा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द इंप्लीमेंटेशन की सोचना बंद करो, अब एक्शन ओरिएंटेड एफर्ट्स वाली एनर्जीज में लगाओ, एफर्ट लो। अब इस चीज़ की तरफ गोल यू हैव एफर्ट्स लेने का टाइम है।
लेजीनेस से आपको बाहर आना है, दैट इज कमिंग, कि आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, आपको अभी लेजीनेस से बाहर निकलना है, एंड या दैट इज व्हाट इज कमिंग। कि अब आपको व्हाटएवर द गोल्स यू हैव, आपको जिस लेजीनेस वाली एनर्जी से बाहर आकर के कैमरा इज आल्सो हियर, शोज द रिस्क, नाउ यू हैव टू टेक द रिस्क, एंड अब आपको ऐसा समझ लो कि यू हैव टू मूव द माउंटेन, क्योंकि आप बहुत लेजी थे अभी तक, आपको जो भी करना था यू डन इट, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टू टेक इन एफर्ट्स। अब आपको एफर्ट्स करने शुरू करने हैं, अब आपको काम करना शुरू करना है, अब आपको एक्शंस लेने हैं, अब आपको स्टेप्स आगे रखने हैं। 3 ऑफ वांड्स इज द कार्ड ऑफ टेकिंग द स्टेप्स अहेड, चैरियट इज द कार्ड ऑफ द विक्ट्री, मूव ऑन, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ शो कर रही है कि व्हाटएवर इंटरनल वर्क और द सबकॉन्शियस वर्क यू हैव टू डू, यू डन इट, नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्शन, सो यू नीड टू टेक द एक्शंस नाउ, ठीक है। एंड इज देयर एनी अदर मैसेजेस दैट दे नीड टू लिसन अपार्ट फ्रॉम दिस? Is there any other messages that they need to hear apart from this? The Knight of Pentacles. I'm hearing obsessive, मतलब obsessiveness लाओ अपने अंदर, लेकिन पॉजिटिव वाली, ना कि ये वाली गलत वाली, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ऑब्सेशन चाहिए काम के लिए। We have 5 of Cups and the 7 of Pentacles. May I have the clarification for these cards, please? Passion. Birth, conception of a child and enterprise. Well, you will be taking care in your difficult times. Great worry over nothing. Fear women, obstacles to overcome, danger, affairs with your family. ठीक है, अब आप एक नए एरिया में जा रहे हो, डेफिनेटली दैट कुड आई सी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एन एक्शंस। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऑब्स्टेकल्स कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं जो टेस्ट है, दैट कोई एक विमेन जो कि नॉट वो आपकी फैमिली से बिलोंग कर सकती है, बट नॉट लाइक ऐसा नहीं हो फैमिली से होगी, लाइक आप उसको एज अपना वेरी फैमिली पर्सन भी मान सकते हो कि हाँ कि शी इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ लाइक योर फैमिली, यू ट्रस्ट हर, यू थिंक दैट गर्ल और विमेन हैज टू बी योर फैमिली पर्सन, ठीक है। तो वो आपको जो है ऑब्स्टेकल्स लाएगी, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकती है वो, एंड जिससे आपको निकलना है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू एज ऐसा है दैट अ विमेन हु हैज अ हाई मास्कुलिन एनर्जी आई कुड सी, ठीक है, वो आपकी लाइफ में कुछ टेंशन क्रिएट कर सकती है। द माउंटेन्स इज हियर, इनजस्टिस इज हियर, कि शी इज गोना बी, देयर इज अ वुमन whom you feel like that person is very trustworthy, that person is your family person, that girl could, I am hearing betray, तो कुछ betray कर सकती है, कोई टेंशंस कर सकती है, कोई ऑब्स्टेकल्स ला सकती है, देयर इज समथिंग डेंजरस, नॉट डेंजरस स्पेसिफिकली बट या डेंजर, मेरे को लग रहा है कि कुछ तो है प्रॉब्लम, बिकॉज जब भी पीछे एक बुल भी है वहाँ पे जो कि बताता है स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्टिट्यूड के बारे में, तो देयर इज अ वुमन जिससे आपको फेस ऑन फेस होगा आपका उस वुमन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्ट्रॉगर देन यू थिंक, सो बी अनबॉदर्ड। तो उस फेमिनिन एनर्जी से अनबॉदर्ड रहो, उस फेमिनिन एनर्जी को, नॉट अ फेमिनिन एनर्जी, फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी, उससे थोड़ा बच के रहो, मतलब बच के भी क्या रहो, मतलब यू विल बी टेकिंग केयर इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, कि आपको लाइक ये जो 3 कार्ड्स बाद में है कि जब आप आगे बढ़ रहे होगे, अब इस वीडियो को देखने के बाद व्हेन यू आर मूविंग ऑन विद मोटिवेशन, विद इंस्पिरेशन, विद ऑब्सेसिवनेस विद योर वर्क, तो लाइफ में आपके आएंगे कुछ ऑब्स्टेकल्स विद, अगर मैं कार्ड्स को हटा के देता हूँ तो ये 3 ऑब्स्टेकल, जो 3 टैरोट कार्ड्स हमें दिखे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये सारे शो कर रहे हैं कि एक फीमेल जो आएगी वो आपकी लाइफ में, ओके द थिंग इज इमोशनली आपको डिससेटिस्फाई करेगी, माइंड के आपके सेटिस्फाई करेगी, एंड इवन कुड क्रिएट सम प्रॉब्लम इन द मनी एज वेल, जब यहाँ पे आ रहे हैं कि मनी के लिए भी, हाँ वो आपके मतलब हाँ आपके बहुत कर सकती है प्रॉब्लम। लोग फेमिनिन इज ऑल्सो हियर, कि एक फीमेल है यहाँ पे, वो बहुत परफेक्टली शो हो रही है यहाँ पे कि देयर इज सम फीमेल जो कि आपको तीनों चीज़ों में, मतलब आपके माइंड से को, आपके इमोशंस को, और आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक मनी में, मनी नहीं कमाते हो अभी तो इन द करियर दैट फीमेल कुड क्रिएट सम प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन वो जो है टेंशन आपको देगी, इंजस्टिस आपको लगेगा कि मेरे साथ इंजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फीमेल। सो यू आर बीइंग टोल्ड कि आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर विश्वास रखना है, आपको भगवान जी के ऊपर विश्वास रखना है, आपको जस्ट अपना काम करना है, ठीक है। मैं फिर भी गाइडेंस ले लूँगी व्हाट, ठीक है। एंड डोंट एक्सेप्ट द डिसरिस्पेक्ट एंड परफेक्शनिस्ट, यहाँ पे आ रहा है कि आपको व्हाटएवर द डिसरिस्पेक्ट यू आर गेटिंग, आपको वो डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, यू हैव टू बी योर इनटू, हाँ इंसल्ट एंड एंग्री इज ऑल्सो हियर, ये वर्ड मैंने चैनलाइज भी करे थे। सो इंसल्ट और एंग्री आ रही है बिकॉज दिस पर्सन इज अ वेरी गुड मैनिपुलेटर, सो दिस पर्सन कुड मैनिपुलेट यू एंड कुड बी अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल इनटू योर लाइफ। सो आपको इस इंसान मतलब कैसे, हाउ कैन देम डील विद दिस पर्सन, वो कैसे डील कर सकते हैं इस इंसान के साथ, उनको क्या करना है, व्हाट दे नीड टू डू, यू नीड टू इंप्रूव योरसेल्फ, आपको सिर्फ अपने आपको सिर्फ अपने आप को चूज करना है। व्हाट इफ दैट पर्सन इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, देन हाउ दिस दे कैन डील विद दैट पर्सन। सेल्फ लव आ रहा है, और कुछ प्लीज, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना, आपको इस इंसान को डील नहीं करना है। मेरे को ये लग रहा है कि डोंट नीड टू डील विद दिस पर्सन, बट अगर ये एक ऐसा इंसान है, पास्ट ट्रॉमास इज ऑल्सो हियर, यू नीड टू बी अ डेंजरस ईविल वुमन, या यू डोंट नीड टू, मतलब आपको अपने डेंजरस वाले उसमें रहना है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है आपको अपनी फायरी एनर्जीज में रहना है, कि विद इन अ वीक इज ऑल्सो हियर, कि एक हफ्ते के अंदर ये सीन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको आ रहा है कि whoever this woman is, उसको जो करना है आप करने दो, यू जस्ट बी इन योर पावर, अपने पावर में रहो, आप अपने हिसाब से देखो, आप अपने एट द बैक आप डोंट स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एनर्जीज में रहो, आप अपनी पावर में रहो, यू नीड नॉट टू डील विद दिस पर्सन, बट पास्ट को रिपीट मत करना, बिकॉज पास्ट ट्रॉमास आर हियर, तो पास्ट को फिर से रिपीट मत करना, बट डेफिनेटली यू हैव टू लाइक अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को परफेक्ट बनाने पे काम करो, अपने लिए काम करो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो, एंड whoever the person is coming
to destroy your energy, to destroy your confidence or whatever the thing is. आपको उस इंसान को भाव ही नहीं देना, because if there is someone who is coming ना, so you need to क्या मतलब क्या देखो, एक इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने, एंड वो कुछ दिमाग में ये चीज सोचता है, ओके दिस इज द रिएक्शन दैट आई वांट फ्रॉम द पर्सन, उसको एक रिएक्शन चाहिए आपसे, बट अगर आप वही रिएक्शन उस इंसान को नहीं दोगे तो एक समय आएगा कि वो थक जाएगा कि दैट पर्सन विल फील यार वो चीज तो मेरे को मिल नहीं रही है जो मुझे चाहिए, तो मैं आगे क्या ही करूँ। तो दिस इज द सेम थिंग दैट इज रिपीटिंग हियर कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, होने दो, आप उन प्रॉब्लम्स को सही करने पे ध्यान दो, लेकिन उस इंसान को अपनी एनर्जीज में मत दो। बट या इफ देयर इज समथिंग लाइक कि आप अपने मतलब यह है कि आप अपने काम पे ध्यान रखो, एंड अगर ये ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ ही रहता है एंड आपके अलावा और किसी के पास नहीं है ये इंसान, या फिर देयर सम सॉर्ट ऑफ लाइक 24/7 आपके साथ है, इसका कोई और दोस्त नहीं है, या आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ और कर सको, यू हैव टू लिव विद दैट वुमन। सो आपके लिए फिर यही है कि भाई जस्ट जितना ज़्यादा इस इंसान से कम इंट्रैक्शंस रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नाउ हु इज दिस फेमिनिन एज विद हाई मास्कुलिन पावर, इफ समवन इज कंफ्यूज्ड अबाउट, तो कौन है ये फेमिनिन एज, कोई ऐसी चीज़ जिससे ये पहचान सके, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर या सम सिचुएशन जो कि उनको हिंट दे सके हु इज दैट फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन नहीं, मास्कुलिन एनर्जी विद हाई विद अ फीमेल, oh I said it wrong way, a female with high masculine energy. The Nine of Swords is here. That person has created some problems in your life. हाँ मतलब आपने अभी किसी भी चीज़ को अगर हील करा है डेफिनेटली, वो मेरे को दिख रहा है। Now the King of Wands is here, the Two of Swords, the Four of Wands and the Magician. कैसे कुछ और मैसेजेस कि ये व्यूअर्स मेरे जान सके ताकि कौन फीमेल है ऐसी। Pissed off, tree, unlucky, environment and nature. Okay, this person यहाँ पे हमको दोनों साइड दिख रही है, आई एम नॉट क्लियर कि क्या है, कि इट्स लाइक कि ईदर यू थिंक दैट पर्सन इज लकी एंड यू आर बीइंग अनलकी, or either it's opposite, that you think that that person is lucky and you are unlucky, and on the other side either this person thinks that you are lucky and that person is unlucky. There's some factor of lucky and unlucky thing. So that person or you, मतलब I'm not clear with the energies कि किसकी कौन सी है, but आप या तो वो pissed off है. Okay, I get it. Wait, let me show you. So यहाँ पे आ रहा था टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एक इंसान की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे एक इंसान की एनर्जी आ रही है, जिसमें से एक एनर्जी आपकी है, दूसरी एनर्जी उसकी। सो आप दोनों की एनर्जी के बीच में आ रहा है कंफ्यूजन, यू बोथ आर कंफ्यूज्ड अबाउट ईच अदर्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, ठीक है, आप दोनों के बीच में देयर सम सॉर्ट ऑफ लाइक कंफ्यूजन कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है दूसरे इंसान से, बिकॉज दूसरे इंसान जो है वो अपनी ही एनर्जीज में है, वो दूसरे इंसान को भाव नहीं दे रहा है, वो या मतलब कि एक इंसान मतलब दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में whoever the female is, कि इस समय राइट नाउ व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो कि आप दोनों के बीच की एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, कंफ्यूजन है, दोनों एक दूसरे को लेकर के कंफ्यूज हो, दोनों के बीच में कोई सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं है, दोनों ही को ही एक साथ रहना पड़ रहा है, बट दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी से पिस्ड ऑफ हो, क्योंकि एक इंसान जो है दूसरे इंसान को समझ रहा है कि वो एक अनलकी पर्सन है और दूसरा इंसान वो जो खुद है वो लकी है। तो ऐसी कोई एनर्जी है कि एक इंसान लकी है, एक इंसान अनलकी है, ऐसा समझ रहे हैं एक दूसरे को, एंड ड्रीम में भी वो इंसान दिखा हो सकता है आपको, या ड्रीम में भी वो इंसान आपको दिखा हो सकता है कि किसकी बात हो रही है, एंड या सो ऐसी कुछ एनर्जी है कि आप दोनों के रिलेशन अभी अच्छा नहीं चल रहा है, either one of you is pissed off with someone's your energy or them energies. So yeah, this is the clarification for you कि आपका रिलेशन इंसान से ऐसा चल रहा है, she is female with high masculine energy, तो now it will become easier for you to know who is this person is, ठीक है, कौन है ये इंसान जिसके साथ आपका अभी ये आदि हो सकता है, whatever I just told you right now, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जीज में रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। मे आई नो सम मोर अबाउट दैट फीमेल इज, आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या एक स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट पर्सन कुड बी अ स्कॉर्पियो, एंड जनवरी से और स्पेसिफिकली नवंबर से आपके रिलेशन मुझे थोड़े से खराब दिख रहे हैं, कि नवंबर से थे बट नवंबर में ज़्यादा नहीं थे, बट जनवरी में आते आते बहुत ज़्यादा ही रिलेशन खराब हो गए हैं, या जनवरी कोई भी इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ दैट, मतलब उस इंसान का बर्थडे हो सकता है, एंड किसी की लाइफ में फाइनेंशियल टेंशन चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, या वो इंसान बिकॉज खराब इज एनर्जी ऑफ द अनट्रस्टवर्दीनेस, कि आपको कहीं ना कहीं है कि ये सामने वाला इंसान अनट्रस्टवर्दी है ड्यू टू सम थिंग्स, बिकॉज हाँ आपको आई एम सो सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत इंटरप्रेट कर ली यहाँ पे, कि दोनों ही एक दूसरे की इंटेंशंस को लेकर क्लैरिटी ये नहीं है, एक की साइड से क्लैरिटी नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान के इंटेंशंस को जो है क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन दूसरे इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस इंसान से, ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान के ना भाव देने के लिए, ना अटेंशन देने के लिए उसकी तरफ वो थोड़ा सा पिस्ड ऑफ है। यस, यू हैव अ फियर ऑफ द पर्सन दैट इज इन फ्रंट, कि वो आपका आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यू हैव मतलब आपको है कि आप मेरे को लग रहे हो दैट यू थिंक यू आर क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ दैट फीमेल पर्सन विद इन दीज फ्यू डेज, रिसेंटली आपने क्वेश्चन करा है कि ये जो इंसान है इसकी इंटेंशन आपको लेकर के कैसी है, यू हैव अ फियर कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है, क्या आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो वैसे तो यही आ रहा है कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, बट लेट मी टेक अ क्लैरिफिकेशन एज वेल कि सच में इस इंसान की इंटेंशन आपके लिए अच्छी है या नहीं है, वो हाउ इज दिस पर्सन्स इंटेंशन इज टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, कैसी इंटेंशन है, हाउ इज दिस पर्सन्स इंटेंशन इज, हाउ इज दिस पर्सन्स इंटेंशन इज, how is this person's intention is, Nine of Wands,
Knight of Wands, how is this person's intention is. The card of detoxification is here. Maybe is also here. Maybe. ओके सो ये जो इंसान है ना, इसकी दो एनर्जीज हैं, डुअल एनर्जीज हैं इसके इंसान की, डुअलिटी है ये इंसान की, कि एक समय पे ये ऐसा होगा दैट आपको फील नहीं होगा कि ये इंसान आपको कभी धोखा भी दे सकता है. इट्स दिस पर्सन इज लाइक ओके यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट, यू आर माय दिस और यू आर माय दैट. ठीक है, कि यू विल फील कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है. बट समटाइम्स यू विल गॉट टू सी द सेल्फिशनेस ऑफ दिस पर्सन, कि दिस पर्सन इज बीइंग सेल्फिश अबाउट देमसेल्व्स. दिस पर्सन इज नॉट जो कि उसका उस इंसान का टॉक्सिक बिहेवियर है, उस फीमेल का टॉक्सिक बिहेवियर यही है कि एक समय मतलब अपने मतलब के हिसाब से आपको अटेंशन देना, कि मतलब है तो आपको कॉल कर लिया, नहीं है तो आपको ना नहीं पूछ रही है. ये है उसका एक और जो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी उस इंसान की तो यही है दैट एक समय मतलब अपने मूड के हिसाब से, अपने हिसाब से कि मन है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं करा. मूड ठीक है, अपने मूड के हिसाब से काम करना आपके साथ. अपने मूड है तो आ गई, नहीं है तो नहीं आई. तो ये है, तो अब आपके ऊपर है ये, आपको कुछ नहीं बोला जा रहा कि करो नहीं करो, आपको बोला जा रहा अपने ऊपर ध्यान दो, इतना तो क्लियर है. अब इट्स अप टू यू इफ यू वांट दैट पर्सन टू बी विद यू और नॉट. वो आपके ऊपर है कि आप इस फीमेल को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बिकॉज दोनों कारण है कि एक पूरी एनर्जी भी एक अच्छी है, तो मे बी डुअलिटी शो कर रहे हैं कि इस इंसान की डुअलिटी है कि समटाइम्स बीइंग सेल्फिश, समटाइम्स बीइंग अ वेरी गुड पर्सन इन योर बॉक्स, राइट. तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, डोंट गिव योर एनर्जीज टू सच नेगेटिव पीपल, बिकॉज फिर उनकी ईविल आई कह लो या उनकी नजर कह लो या उनका कुछ भी कह लो, whatever the belief system you have, तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है ऑब्वियसली. बट जस्ट बी अश्योर विद व्हाट यू वांट. ठीक है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाओ, बैलेंस लाओ, डिटॉक्सिफिकेशन करो, कुछ नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में जगह दे रखी है. अगर आप इस इंसान को निकालना नहीं चाहते हैं, निकाल भी नहीं पा रहे हो, तो वो एक्शंस लो, तरफ एफर्ट्स लो कि जिससे ये इंसान आपके साथ कम इंटरेक्शंस रखे. ठीक है, बहुत कम इंटरेक्शंस हो जाए या बहुत कम आप इस इंसान को एनर्जीज दो. मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कुड हैंडल विद दिस पर्सन. इट्स अप टू यू कि आपकी सिचुएशन कैसी है. सो जस्ट थिंक वाइजली कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना. एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. सो बेस्ट ऑफ लक विद दिस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आई होप कि व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी डू इट्स गोइंग टू बी इन टू योर फेवर. ठीक है, तो थैंक यू सो मच.